Hello, welcome back students to the class of psychology. So let's continue our topic, the basis of human behavior. So in earlier modules you have studied about the biological basis of behavior, like the nervous system, the central nervous system and the peripheral nervous system, brain, spinal cord and the endocrine system, that how they regulate our behavior, how they control the functions of our body. So now you have idea about the biological basis of behavior, कि कैसे biological basis of behavior जो होते हैं वो हमारे body को regulate करते हैं और हमारे functions behavior को regulate करते हैं. But now students, further we move in the chapter, there are another thing also, which is the cultural basis of behavior. As you all know that many of things is regulated by the endocrine system and the nervous system, okay, but not all things regulated by something is more which regulates our behavior, okay, and which make human behavior complex. एज यू ऑल नो कि जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन फाउंड दैट देयर आर मेनी थिंग्स same among the animals and the human beings, okay. So what is the thing which makes difference, which makes the human behavior more complex than the animals? So let's continue our topic, okay. So first is first look that biological processes like eating, behavior, breathing, sexual behavior, all is same, ओके, फाउंड इन बोथ द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स. जो भी चीज़ें होती हैं एनिमल्स में भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, अगर हम बात करें हंगर, सो as you all know hunger is also common in the animals, okay, they also eat something to calm down the hunger, okay. So उनका भी eating pattern होता है and just like them human beings also eat something to calm down their hunger, but there is the different thing which makes humans behavior, humans eating behavior more complex than animal. क्या होता है, अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हंगर का ही, ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं दे जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स वी कैन सी different ways, different styles of eating pattern. Like some people like the vegetarian food, some people like non-vegetarian food, okay. Some people used to eat with their hands, okay, and some people used to eat with the forks, spoons and many other things, okay. So this, it means the human behaviors, human beings patterns are more complex than the animals. So it means biological process तो उस behavior को complex नहीं बताती है, क्योंकि अगर वो चीज़ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में तो सेम होती है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम जो फंक्शंस प्ले करता है, या जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो फंक्शंस प्ले करता है या रेगुलेट करता है, वो तो ह्यूमन बींग्स में भी कर रहा है और एनिमल्स में भी कर रहा है. पर कुछ ऐसी चीज़ है विच मेक मोर कॉम्प्लेक्स, द ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है. तो व्हाट इज़ दैट थिंग? सो फर्दर वी सी दैट द कल्चरल प्रोसेसेस, ओके, एज वी आर स्टडिंग द कल्चरल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो cultural processes like socialization, choices, values are different. Animals are not following any particular culture, okay, but human beings are following some particular culture, some values, socialization, choices, values, ideas, okay. So they follow the some particular culture, और जो culture होता है it makes the human behaviors more complex than animals. We can say we can observe that which found only in human beings, जो cultural basis होता है it founds only in human beings, like homo sapiens को भी हम देख सकते हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंट थे, वो बहुत तरह एनिमल्स की तरह ही रहते थे, पर फिर भी कुछ सोशलाइजेशन, मतलब सोसाइटी में रहने वाली चीज़ें हुई, कुछ चॉइसेस हुई, आफ्टर द इवोल्यूशन मेनी थिंग चेंजेस, ओके. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कल्चरल प्रोसेसेस ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं, और यही चीज़ें ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बनाती हैं.
another now here in the picture in the slide you can see the biological basis के अगर हम example ले तो eating sexual behavior होता है वो same होता है. अगर cultural basis की बात करें जैसे मैंने भी आपको example भी दिया था कि कुछ vegetarian होते हैं कुछ non vegetarian होते हैं, some people like spicy sweet, and in sexual behavior also it depends on the partner preferences and marriage. Okay, but in animals we can see the sexual behavior होता है वो almost सेम होता है, पर ह्यूमन बींग्स में इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर प्रेफरेंसेस एंड मैरिज बेसिस. ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट कि डू वी मेक कल्चर और डज कल्चर मेक अस. ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमने कल्चर को बनाया है, डू वी मेक कल्चर और डज कल्चर मेक अस, बिकॉज वी ऑब्जर्व दैट दे आर इन द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर डिफरेंट कल्चर्स, और वो अलग अलग वेज में हर सोसाइटी या हर कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है. नाउ हेयर वी आर यूजिंग द वर्ड ओनली कल्चर, सो वी टॉक अबाउट द कल्चर ओनली कि हाउ द कल्चर मेक अस, एंड if we make culture तो how we make culture. Okay, so another thing is कि what is culture. सबसे पहले जो first thing is to understand that what is culture. We are talking about the culture and the question is there कि do we make culture or culture make us. So first we need to understand the meaning of the word the culture. So culture, the ways we can say the culture is that the ways of thinking, the ways of acting and the material objects that together form a people's way of life. So these all things make the culture. जो भी हम सोचते हैं हमारे लिविंग स्टाइल, जो लिविंग स्टैंडर्ड वी कैन से, तो द थिंग्स वी यूज इन अ पर्टिकुलर कल्चर. जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू कल्चर की तो वी यूज टू गो टेम्पल्स, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कैथोलिक्स कल्चर they used to go in church. Okay, so this is the difference between the cultures, the Hindu culture and the Catholic cultures. Okay, so we can say here that after the knowing the meaning that only humans rely on culture rather than instinct to ensure survival, because जस्ट लाइक द बायोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है उसी की तरह जो हमारा कल्चरल बिहेवियर है, इट इज़ ऑल्सो पास ऑन थ्रू जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक मूव ऑन करता है, और इसमें कुछ पैटर्न्स भी फॉलो होते हैं. और जैसे कि मैंने बताया कि जो सिर्फ कल्चरल बेसिस ही होता है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बनाता है. अब ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कल्चरल बेसिस को बनाती हैं, कैसे हमारा कल्चर जो होता है वो बनाया जाता है बाय द ह्यूमन बींग्स. बिकॉज एज आई टोल्ड यू ना कि जैसे बायोलॉजिकल बेसिस मूव ऑन होते हैं, जस्ट लाइक दैट cultural basis also move on from one generation to another generation. Okay, so the next thing is कि culture बनता किस चीज़ से है, what is culture. So there are two type of things like non-material culture or material culture, which we observe in almost in every culture. We can observe these things. Like non-material culture, we can say non-material culture includes the ideas created by members of a society. Okay, like for example you can see or you can observe that many culture follow some ideas, some values, some norms for their particular culture. जैसे कि अगर हम बात करें जो ट्राइबल कल्चर्स होते हैं वहाँ पे एक अलग तरह के आइडियाज़ यूज़ होते हैं. और इफ़ वी टॉक अबाउट द हमारे जो सिविलियंस हैं, जो सिविलियंस सोसाइटी हैं, उनके कल्चर बहुत अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस, लाइक सम कल्चर prefers the education for both the boys and the girls, but some culture prefers the education for only for the boys. they उन लोगों को गर्ल्स की एजुकेशन का इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, और वहाँ पे उन लोगों के लिए प्रेफरेंस भी नहीं दिया जाता है, बिकॉज दे थॉट कि बॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो बॉयज़ की ही जो कल्चर है, सॉरी बॉयज़ की जो एजुकेशन है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द girls. So this means these ideas, these values created a non-material culture. Okay, and these ideas created by the members of a society. Okay, the another culture type of we can see here, that is the material culture, like tangible things created by members of a society. Like अलग culture में in different cultures people used different things. For example like when you used to study, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, यू आर यूजिंग अ स्टडी टेबल एंड अ चेयर. बट व्हाट अबाउट द
अदर कल्चर्स जहाँ पे चेयर का यूज़ ही नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग चेयर से बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम चेयर इज़ नॉट यूज़फुल, तो वहाँ पे चेयर होती भी नहीं है कई जगह पे। तो दिस इज़ द कल्चरल डिफरेंस, जो कि अगर हम हमारी बात करें तो हम लोग चेयर पे बैठना प्रेफर करते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं वो बैठना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग चर्चेज़ में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर में हम लोग नीचे ही बैठते हैं, और चर्च में वी यूज़ टू सिट ऑन अ बेंचेस, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स जो होते हैं ये होती है मटेरियल कल्चर की। हर कल्चर में जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे हाउसेस का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो हमारे पूजा करने का स्ट्रक्चर, जो हम पूजा करते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, ये भी है, उनका स्ट्रक्चर है, तो दिस इज द मटीरियल थिंग्स, ओके। सो दीज थिंग्स मेड द मटीरियल कल्चर, okay, and these tangible things also created by the members of a society. So here we can see non-material culture and material culture, and both culture created by the members of the society, okay. So another thing is that what is culture. So इसी के अंदर एक और चीज़ भी आती है कि सोसाइटी, हम लोग वी आर, सो स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, बट एज आई टोल्ड यू दैट कल्चर मेड बाय द member of the society. So first the society meaning. So meaning of society is, society refers to people who interact in a defined territory and share culture. Suppose we are living in India, ओके और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, लाइक हिंदूज़, मोमडम, सिख्स, ओके, कैथलिक्स, तो बहुत अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं, ओके। सो दे आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर। द पीपल जो कि वहाँ पे रहते हैं, जो उन सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। सो इट मीन्स द सोसाइटी इज़ मेड बाय द पीपल who lives in a particular territory, interact with each other and share the cultures, okay। जैसे कि हम लोग रहते हैं तो हम लोग इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में भी बहुत अलग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कोई जैन है, कोई सिख है, कोई और अलग है। तो इस तरह से अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो सोसाइटी को बनाते हैं, एंड द डिफरेंट सोसाइटीज़ मेड अ कल्चर। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एक कल्चर को बनाती हैं। सो कल्चर के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। इट इज़ क्लियर टू यू नाउ, आई थिंक, ओके। नाउ द अनदर थिंग इज़ द कल्चर शॉक। स्टूडेंट, इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, बट इट इज़ वेरी फेमस एंड द मोस्ट कॉमन वर्ड्स अमंग, अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हम ये कह सकते हैं, द वर्ड इज़ द कल्चर शॉक, okay। So culture shock refers to personal disorientation when experiencing an unfamiliar way of life. Now this thing you can understand better with an example. Suppose कि यहाँ पे we are following a culture in India, okay, और अब a person who is used to stay in India but मूव टू अनदर कंट्री, वो वेस्टर्न किसी कंट्री में चला जाए, तो वहाँ पे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ के कल्चर से और वहाँ के कल्चर को वो कंपेयर करेगा, ठीक है। उसको बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़, मतलब उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें अबनॉर्मल और डिफरेंट नज़र आएंगी। सो जो उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न वाला जो मेंटल स्टेट क्रिएट हो जाएगी कि वो किस चीज़ को फॉलो करे, किस चीज़ को नहीं करे। सो दिस थिंग मीन्स द कल्चर शॉक, okay। So it means to have personal disorientation when experiencing an unfamiliar way of life। यहाँ का तो सारा कुछ रहन सहन उसका फेमिलियर था, पर जो अनदर कंट्री थी वहाँ का जो लिविंग स्टाइल था दैट इज़ अनफेमिलियर टू हिम, और जिसकी वजह से इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द कल्चर शॉक, ओके। नाउ अनदर थिंग इज़ द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। नाउ आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द कल्चर, ओके। कि जो कल्चर्स होते हैं दे different societies made the culture, and the two things which we observe in the culture is the material things and the non-material things. Non-material things are the ideas and material things which we use to हम लोग जो use करते हैं, okay। So now we can say that although cultures vary,
but they all have 5 common components here. So what are the 5 common components? Like कुछ जो कल्चर्स होते हैं उनके सिम्बल्स हर कल्चर के अलग अलग सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कीप इन योर माइंड, ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स होते हैं, उनके अलग सिम्बल्स होते हैं, हमारे पास कुछ अलग सिम्बल्स होते हैं। लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, ओके। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आर डिफरेंट, एज आई टोल्ड यू कि कुछ लोग एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, दैट सम पीपल सम कल्चर prefer the girls education but some does not prefer the girls education, okay. Some culture are different, कॉमन कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट कॉमन कंपोनेंट्स है नॉर्म्स जो होते हैं वो भी कल्चर्स में सब में होते ही हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सबकी होती हैं, पर ये है कि वो अलग अलग होती हैं। आइडियल्स एंड रूल्स, रियल कल्चर जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मीन टू से कि ये जो 5 चीज़ें हैं, द सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, वैल्यू एंड बिलीव्स, नॉर्म्स, आइडियल एंड रियल कल्चर, इट इज़ कॉमन कंपोनेंट्स फॉर द ऑल कल्चर्स, rather they all are different in different cultures, okay. The another thing is which is important, and that is the cultural transmission, okay. So now you understand and now you are having an idea that जो human behavior is regulated by the biological basis as well as with the cultural basis also, okay. So जो cultural basis जो होते हैं वो भी ट्रांसमिशन होता है, उनका भी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशंस की तरह ही। नाउ स्टूडेंट्स, हियर अनदर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट बिफोर द कल्चर वी रीड द कल्चरल ट्रांसमिशन, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी इज़ अ न्यू इमर्ज्ड ट्रेंड वी कैन से। तो सोशियोबायोलॉजी क्या बिलीव करती है? वो बिलीव करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन्स करती हैं, ठीक है, इन एन evolutionary framework. इन evolutionary framework मीन टू से कि जो evolutionary चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा biological evolutions हुआ था, just like that we are facing a cultural evolution also. So these sociobiology studies the cultural evolution, societal evolution among the human beings, okay. So it means जो अब आगे जैसे जैसे studies moves on हुई, they found, the psychologist found that जो cultural transmission, जो cultural evolution होता है, it based on the learning, whatever we learn, so okay. So this is move on from one generation to another generation, okay. As you can see in culture, जो biological basis होते हैं वहाँ पे भी through the genes many information moves on, pass on through one generation to another generation. Just like that in cultural transmission also some important things moves on, but after a लर्निंग, जो लर्निंग होगी किसी भी चीज़ की, उसके थ्रू ही कुछ चीज़ें, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, वो पास ऑन होते जाते हैं, ओके. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट ओवर हेयर, हीडी केलर, okay, she proposed a new notion, okay, which is called the genetic preparedness. This suggests that acquisition of particular behavior via learning occurs in fairly efficient ways to facilitate our adaptation with the environment. Just like जैसे biological basis के लिए, biological evolution के लिए हम environmental changes जो होते हैं, जो भी environment demand करता है वो change होते हैं, survival to the fittest होता है और फिर वो move on होते हैं. Just like that जो cultural transmission होता है या जो cultural things होती हैं जो one generation से another generation तक move on होती हैं, वो भी लर्निंग के थ्रू ही होती हैं, अडेप्टेशन होता है एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है, और वो भी बहुत ही फेयर तरीके से एफिशिएंटली मूव ऑन होती हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक, ओके. सो नाउ इट इज़ नॉट बिलीव दैट ह्यूमन इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स, it is not believed that human evolution involves both the cultural transmission as well as the biological transmission. तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें पढ़ने ज़रूरी हैं कि कैसे cultural transmission take place and how the biological transmission take place, okay. So there are some similarities and some differences between the cultural transmission and the biological transmission, okay. So these
रादर दे हैव अ पैरेलल फीचर्स, बोथ जो हैं उनमें फीचर्स की अगर हम बात करें तो दे हैव पैरेलल फीचर्स बट still they are having some difference. So first we study the cultural transmission. So cultural transmission, as you understand, as you know, that found only in human beings. The cultural transmission is not found in the animals in another species. किसी भी another species में it is not found, only found in the human beings. Okay, just like the जो cultural transmission received from parents, फ्रेंड्स एंड पीपल्स. सो स्टूडेंट्स जो हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, वी रिसीव्ड फ्रॉम आर पेरेंट्स, फ्रॉम आर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम आर पीपल्स. जो हमारे सराउंडिंग पीपल्स होता है उनसे जो भी हम गैदर करते हैं, जो भी हम कलेक्ट करते हैं, इट इज़ move on through the cultural transmission. Okay, so students, another thing is inter and intra-generational. Like cultural transmission is also inter and intra-generational. मतलब एक generation में भी होता है, ठीक है, within a generation, within a family we can say, okay, and in intra-generation मतलब one generation to another generation. Okay, it moves on top to bottom and bottom to up. दोनों, it moves in डिफरेंट वेज. मतलब इसके दोनों वेज हो सकते हैं, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप. दोनों तरह से ये मूव ऑन होता है, ठीक है. लाइक पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस तक भी और चिल्ड्रन से उनके पेरेंट्स तक भी. सो इट मीन्स टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप. टॉप टू बॉटम मीन्स पेरेंट्स थ्रू द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन एंड बॉटम टू अप मीन्स थ्रू द चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कुछ होता है ना कि जैसे कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमसे इनहेरिट कर, हमसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें. आई टोल्ड यू ना, कल्चरल ट्रांसमिशन, द बेसिस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन इज़ लर्निंग. सो कुछ चीज़ें हम पेरेंट्स से, हमारे पीपल से, हमारे सराउंडिंग जो पेरेंट्स होते हैं उनसे रिसीव करते हैं और लर्न करते हैं, और कुछ चीज़ें वो लोग भी हमसे सीखते हैं. ओके, एंड कल्चरल ट्रांसमिशन वाया मीम्स. मीम्स मीन्स द इमिटेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द लर्निंग. जो भी हम हमारे कल्चर जो होता है उसको हम इमिटेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन अ पर्टिकुलर फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा होती है, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एक पर्टिकुलरली रूल फॉलो कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे सुबह सुबह उठ करके पूजा करनी है, इसका रूल फॉलो करने हैं. यही चीज़ पेरेंट्स, इसके बाद यही चीज़ उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं वो भी फॉलो करने लग जाते हैं. सो दिस मीन वाया मीम्स कल्चरल ट्रांसमिशन इस तरह से मूव ऑन होता है. ओके, तो अनदर थिंग इट इज़ कॉल्ड इमिटेशन ऑल्सो, क्योंकि वो बच्चे इमिटेट ही कर रहे हैं उस चीज़ को. So that's why cultural transmission via memes, teaching or imitations. Okay, another thing is the biological transmission. Students, biological transmission means genetically transmission is universal. You all know in all species, cultural transmission only occur in the human beings, while biological transmission occur in all species. Okay, so genetically transmission is universal and the biological transmission अकर थ्रू द जेनेटिकली. ओके, हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं कैसे होता है जेनेटिकली जो ट्रांसमिशन होता है इन अर्लियर मॉड्यूल. ओके, एंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स. अभी हमने बात की थी जो कल्चर हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन था, वी रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीपल, क्योंकि हम सब लोगों से सीखते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, वी रिसीव ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स. जेनेटिकली जो रिसीव होता है, जो भी हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं थ्रू द जीन्स, it is received from the parents. Okay, the third thing is intergenerational. अब ये intergenerational भी हो सकती है, intragenerational. Like the cultural transmission was inter and intragenerational both, but biological transmission is always intergenerational. एक ही जनरेशन में फॉलो करेगा. ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो जीन्स हैं उसके जो हमारे पेरेंट्स से हमने लिए हैं वो हम किसी और को दे दें, ठीक है, किसी नेक्स्ट उसको स्पीशीज़ को या किसी नेक्स्ट कल्चर को किसी और पर्सन को हम दे दें. ये हम सिर्फ हमारे बच्चों को ही दे सकते हैं. सो इट मीन्स ये एक पर्टिकुलर जनरेशन ही फॉलो करता है. कल्चर जो ट्रांसमिशन होता है वो कल्चर हम शेयर करते हैं. जैसे हम कहीं और चले गए, हम किसी और दूसरी कंट्री में चले गए तो वहाँ पे कुछ और हमने लर्न किया. सो दैट्स वाई दैट इज़ इंट्रा जनरेशनल ऑल्सो. ओके, देन अनदर थिंग इज़ टॉप टू बॉटम. इन कल्चर ट्रांसमिशन वी सी that the way is top to bottom and bottom to up. Okay, but in biological transmission it is always top to bottom, mean to say what we have to inherit anything throughout the genes from the parents. Okay, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो अपने चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स को कुछ दे दें.
ऐसा नहीं हो सकता है. ऑलवेज द वे इज़ टॉप टू बॉटम. पेरेंट्स से ही बच्चे करेंगे और आगे यही जनरेशन फॉलो होगी, आगे यही सिस्टम फॉलो होगा. दैट्स वाई इट इज़ टॉप टू बॉटम. एंड आई टोल्ड यू इन कल्चरल बेसिस, कल्चरल ट्रांसमिशन, दैट कल्चरल ट्रांसमिशन टेक प्लेस वाया मीम्स. मीन टू से टीचिंग, इमिटेशंस, कुछ टीच करते हैं, किसी को हम कुछ सिखाते हैं, कुछ इमिटेशंस होती हैं. वाइल बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन टेक प्लेस वाया जीन्स. जीन्स के थ्रू ही ये बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो होता है वो टेक प्लेस होता है, वो मूव ऑन होता है. ओके, so there are the things, the cultural and the biological transmission, the some similarities and some differences are. Okay, now another thing जो चीज़ होती है वो होती है यहाँ पे dual inheritance theory. स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोलॉजिकल आई टोल्ड यू ना कि जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है वो भी ट्रांसमिशन है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो इट मीन्स जो हमारे बायोलॉजिकल और कल्चरल जो बेसिस है दे play an important role. They both play an important role in the human being's behavior, and it is called the dual inheritance. In dual inheritance, actually it is a theory which suggests that although biological and cultural forces may involve different processes, but they work as the parallel forces and interact with each other in offering explanation of an individual's behavior. ओके, सो जो ड्यूअल इनहेरिटेंस है इसके अंदर दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल बेसिस. सो स्टूडेंट्स